اصحاب حسینی سے کیا علم ہوتا اگر وہ خلوص و ارادہ کے ساتھ آئے جی تو مجھے مختصری کافی ہے. ہمارے یہاں تعداد کی شرط نہیں ہے جی، اکثر تو کھاٹے میں ہے، قرآن کی آواز ہے جی، خسارت گھاٹے میں ہے، خسارت میں ہے، نقصان میں ہے، اکثریت اقلیت ہو مگر کیفیت 72 کی طرح ہو. 80,000 کا لشکر بھی گھٹنیاں ٹیکنے پہ مجبور ہے. سمجھ لیا؟ توجہ کیجیے گا بس. تو جب دیوار کعبہ میں زلزلہ ہونے لگا، تلاطم شروع ہوا، بھوکمپ آنے لگا، مکے واسی سب بھاگ کھڑے ہوئے، پرانا تجربہ تھا مگر بھاگے نہیں. تو ابو طالب کے گھر کی ناموس نہیں بھاگی. میں آپ سے ایک سوال کروں گا میرے بزرگوں، میرے بچوں، جب کسی چیز میں زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کانپنا کس چیز کی علامت ہے جی؟ کہا کہ اگر کانپتی ہے کوئی چیز تو وہ ضعیف ہے جی. بڑے میاں کانپ رہے ہیں سجدے میں، اللہ اکبر. خدا نے کہا اس کپکپاتی نماز کو بھی قبول کر لو. جوانی میں سبحان اللہ بغیر لڑکھڑائے ہاتھ سے نماز پڑھتے جی. میں اپنے فرشتوں کو دکھاتا، تم تو کہہ رہے تھے فرشتے یہ انسان زمین میں فساد کریں گے، دیکھو یہ جوان نماز پڑھ رہا ہے. بڑھاپے میں تو موت یاد آتی ہے، قبر یاد آتا ہے، عذاب یاد آتے ہیں. جوانی میں پڑھو نماز میرے جوانوں. تو خدا فخر کرتا ہے، ملائکہ کو دکھاتا ہے، آؤ دیکھو. تم تو کہتے تھے کہ خدا انسان کو خلق کر رہا ہے، یہ تو فساد کریں گے، دیکھو نہیں میرا جوان سرپا سجود ہے. اس بیچ میں ایک بات کہہ دوں، بزرگوں سے معافی چاہتے ہوئے تو ان کا سنا ہوا شاید بات یہ ہے، خدا کو میرے خدا کو، میرے اللہ کو، پروردگار کو، گاڈ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ دنیا میں کون سی چیز سب سے بڑی لگتی ہے بتاؤ؟ میری منزل سے ایسے رہتی ہے، سوال ٹھوکتا ہوں تاکہ ذہن کھل جائے. یا یوں کہہ دوں وہ کھیت ادھر گیہوں پتہ نہیں کہاں کا، وہ سب ذہن ادھر آتے ہیں ادھر کو چھوڑتے ہوئے جی. خدا کو سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ پیغمبر سے پوچھا کسی صحابی نے، مسئلہ تو حل کر گئے، صرف ہم ڈھونڈ لیں اس کو. حضور اللہ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تاکہ اللہ کو 2 چیزیں پسند ہے، ایک جوان کا سجدہ. جوان یہاں بہت بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ جوان کا سجدہ اور دوسرا جوان کے آنسو. تاکہ جب کوئی جوان خوف خدا میں یا اپنے گناہ کے توبہ میں میرے بارگاہ میں روتا ہے، اس کے آنسو سے زیادہ مجھے کوئی اور چیز پسند نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، تاجدار نبوت نے کہا ہے جی، تاجدار نبوت نے کہا ہے. تجلیات حکمت اٹھا کے دیکھ لیجئے، غرار الحکم میں دیکھ لیجئے، یہ حدیث موجود ہے. ریفرنس دے رہا ہوں. ہاں 2 چیزیں پسند ہے، 2 مختلف جگہوں پہ جو میں سمیٹ کر کنیکٹ کر کے آپ کے لیے بیان کرتا ہوں. ایک جوان کا سجدہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، ایک فرشتے دیکھ میرا وہ جوان سجدہ کر رہا ہے. اور ایک جوان کے آنسو دیکھ میری بارگاہ میں ندامت کا یہ آنسو ہے، پوری دنیا ایک طرف، آنسو کا ایک قطرہ ایک طرف. میرے اللہ جب
के आंसू है। जब खुदा को भरे रखते हैं, मैं कौन हूँ, इंसान कौन होगा? कहा कि देखो बात चली थी कपकपाहट से, है ना, जलजला से, कांपना, इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेशन ना। ये कांपना किस चीज की अलामत है? कहा कि ज़ईफ़ी की अलामत है। ज़ईफ़ कांपते हैं, ज़ईफ़ बच्चा है कांपने लगा, ज़ईफ़ के आलम में मुस्लिम हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, बेचारे कांपते हैं। जिस्म का सिस्टम ये है। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, पुराने जमाने में याद रखना, खासकर मेरे बच्चों, पुराने जमाने के लोग मजबूत बहुत होते थे, उम्र वाले बहुत होते थे, उनकी वारंटी बहुत ज्यादा है। तुम्हारे बनिस्बत 100 साल तक भी जीते थे और पैदल चलते थे मस्जिद तक जी, और आज 60 साल में बुढ़ा लगने लगा जी, जवानी खत्म होने लगी। लेकिन बुजुर्गों माफी चाहता हूँ, उस जमाने से हमने ये सीखा है, मजबूत बहुत थे, सभी बहुत थे जी, हिम्मत बहुत थी। मगर आज का बच्चा तेज बहुत है, चचा सहन का तेज बहुत है, बहुत सही बच्चे हैं। मेरे मजमे को बुलाने के लिए एक जुमला कह दूं, जो देवरी में बैठ के हुक्का पी रहे होंगे, या सांसें ले रहे होंगे, या बीड़ी का आखिरी दम ले रहे होंगे जी। देखिए दो बच्चे थे, दो उगले, क्या बोलते, दो गुरु फारसी में, यानी एक ही साथ पैदा हुए एक ही दिन में, चेहरा भी एक जैसा है, होता है ना, इसको देखो तो वो समझ में आता है, इसका नाम हसन मसलन, उसका हुसैन, हुसैन को देख के लोग इज्तिमा करते हैं, हसन समझने लगते हैं, हसन को देख के हुसैन जो भी नाम हो, है ना, तो होता है। एक माँ के दो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, एक बड़ा किलकिलानी मार के हंस रहा था, एक मुंह बैठा हुआ था। बाप घर में आया, देखा ये बहुत तेज हंस रहा है और ये चुपचाप बैठा हुआ गम में निढाल हो रहा है। हंसने वाले से कहा, मत क्या बात है, बहुत हंस रहे हो? कहा कि अब्बा इस ठंडक में, धोखे में अम्मा ने मुझे समझ किसके 2 दफा मिला दिया जी। अब किसी तेजी की बात पता मैं चाह रहा था कि सब जाग के सुने। लिहाजा ये बच्चा ऐसा मत समझिए ये समझ नहीं रहा है, समझने में किसी से कम नहीं है आपका बच्चा। लिहाजा मैं सबको इस सफे असा के इबादत में एक कतार में देखता हूँ। हाँ, जो अल्लाह जिस जगह है वही आसपास है। बच्चा भी है तो निगाहे बतूल में वो आज़ादारे हुसैन है। मेरी क्या बात है, मैं कौन होता हूँ छोटा और बड़ा कहने वाला, ये इश्क़े हुसैन की इबादत में बैठे हैं। यहाँ ना कोई बूढ़ा है ना कोई बच्चा है। सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, आज 6 तारीख है ना, यहाँ के दस्तूर के मुताबिक सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। खुदा आलम के यहाँ खाना काबा में ज़लज़ला है। लोगों ने कहा कि ज़लज़ला तो कमजोरी की निशानी है। तारीख में कुछ फर्क पढ़ लूं। जब मक्के में पहले दफा कुरान की 5 तदरीजी आयतें नाजिल हुई, एक तो मेरा नबी पढ़। कुरान की इब्तिदा कहां से है? इक़रा से है, पढ़ से है, इल्म से है, पढ़ाई से है, जिहालत से नहीं है। अब हमारे बच्चे जाहिल नहीं रहने चाहिए, कुरान के मानने वाले जाहिल नहीं होने चाहिए, सब पढ़े लिखे होने चाहिए। मेरा नबी पढ़ जी, तारीफ कुछ भी कहता हो, मुझे उस तारीफ में नहीं जाना है क्योंकि बहुत तवील हो जाती है मजलिस। जो ज़ियारत नहीं जाऊंगा, जो वादा भी करता हूँ उसको भी पूरा करना है। कोई याद दिलाए या न दिलाए, समझ करे या न करे जी। तो आगे जब ये 5 आयतें नाज़िल हुई, अब नबी अकरम हुजूर पाक गारे हिरा से वापस आते हैं कांपते हुए। मौलिकों, कलम के मुनाफिकों लिखना शुरू कर देते हैं, नबी डर गए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे जी। देखो मेरे बच्चों, हर
वाइब्रेशन पे लगाया, कांपने लगा, मैं तो डर के भाग जाता। लेकिन उस तारीख का मुताला करने के बाद मैंने सोचा ये डर गया, कांपने लगा। कस्टमर केयर पे फोन किया, मैंने कहा मोबाइल खराब हो गया। क्यों? मैंने कहा मैसेज आया, कांपने लगा। मेड इन जापान है, मेड इन चाइना है, हो गया होगा। ताकि नहीं, गारंटी भी है, वारंटी भी है। ये इसलिए नहीं कांपा है, तुम्हारे इल्म में कमी है। कांपने का मतलब ये है, पूरा खुल के सुनाओ क्या? कुछ भी कुछ दरवाजा खोल, नबी की अज़मत बयान कर रहा हूं ताकि देखो किसी के इल्म में कमी जरूर होगी। हर कांपना डरने की अलामत नहीं, कमजोरी की अलामत नहीं, सिस्टम के बिगड़ने की अलामत नहीं, बल्कि ये वाइब्रेशन बता रहा है मैं आम हालत में नहीं हूं, आरती हालत में नहीं हूं, मुझ पे SMS नाज़िल हो रहा है। लफ्जों को बदलकर आगे जुमलों में कह दूं, नबी कांपते हुए आए, खदीजा ने पकड़ा, कंबल उड़ाया। ये जाहिल मक्के के अबू जहल के रिश्तेदार समझने लगे कि नबी में सही भी आ गई, डर गए जिब्राइल को देखकर। अमान नबी डरे नहीं, नबी कहना चाहते थे जब मैं कांपता हूं आम हालत में नहीं हूं, मुझ पे SMS नाज़िल हो रहे हैं, कोई आ रही तो ये मोबाइल का मेड इन जापान का छोटा सा डिब्बा मुझे समझा गया कि ये कांपना डर की अलामत नहीं है, बल्कि इस चीज की अलामत है क्या मैं साधारण आम हालत में नहीं हूं, बल्कि खास कैफियत में हूं। मुझ पे मैसेज आ रहे हैं और ये ताजदार नबुवत, ये इलाही मैसेंजर इसलिए कांप रहा है कि बताना चाहता है मैं आम हालत में नहीं हूं, मुझ पे वही नाज़िल हो रही है। अब भी साफ कर लो, कलम को पाक करो, किताब को साफ करो, जोहर को नूर से भरो, तब समझ में आएगा नबी का हर अमल मसलहत से खाली नहीं होता। नबी का एहतराम क्या जानो दुनिया वालों, नबी को क्या समझो दुनिया वालों। यही वजह है नाक़िस समझे थे नऊज़ुबिल्लाह, अब भी नबी के जन्ममार्ग में कार्टून बनाए जा रहे हैं। यूरोप में एक जुमला कह दूं फिर मैं अपनी बात पे आ जाऊंगा। तारीख में मैंने पढ़ा है, तमाम मेरे मुसलमान भाइयों मेरी बात से सहमत होते हैं। एक दिन नबी गली से गुजर रहे थे, मदीने भी मुनाफिक रहते थे। देखिए ये जो हम लोग सलाम करते हैं ना, सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम, ये इस्लाम का सुनाऊंगा इंशाअल्लाह इस तरीके से, इसके बारे में भी ये इस्लाम का दस्तूर है सलाम करने का। ना इस्लाम ने सिखाया आदाब ना उदाब जी, ना इससे ना नमस्ते। इस्लाम ने सिखाया सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम जी, एक ही बात है। अब अरबी की लफ्ज़ है, जरा सा जेर इस मुकद्दमे को गूगल कीजिए, उसके बाद
दीजिए तो माने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ तला रब्बुहु बेकलिमातिन बेपेश वो रब्बुहु, यानी क्या मतलब, यानी इब्राहिम के रब ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया। लेकिन नाउजुबिल्लाह अगर किसी ने रब्बाहु कर दिया ना, बेज़र बे को बेपेश बो को बेज़बर कर दिया ना, माना इतना बदल जाता है। यानी इब्राहिम ने अपने रब का इम्तिहान लिया, जो हो नहीं सकता। ये है कुरान, यह अरबी लैंग्वेज। दुनिया के सबसे बड़े बड़े सख्त ग्रामरों में से एक है अरबी ग्रामर, बहुत भारी है, लिहाजा ये बात समझ आ गई। वो मदीने का बिगड़े हुए नस्ल की औलाद नबी को जब देखा, तमस्कुर मस्करा करने के लिए उसने नबी को उल्टा सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम की जगह सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, यानी अलैकुम, तुम्हारे ऊपर तलवार आए। नबी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया सुनते हो? वो किरदार के उरूज पर फाइज, वो जी ये कहते हैं कि मैं अखलाक की तकमील के लिए दुनिया में आया हूँ, यानी सबसे बड़ा मुअल्लिम अखलाक अल्लाह के बाद मैं हूँ। वो नबी कहते हैं व अलैकुम या वलदुज़ ज़िना, यानी तुम पर भी सेम हो ज़िना सकते। नबी के लिए, नबूवत के लिए ये जुमला भागकर सहाबी आगे बढ़े। हुजूर इस बच्चे को क्या कह दिया? कहा कि मैंने जो कहा मां से इसकी जाके पूछ लेना, इसकी मां से पूछ लेना मैंने क्या कहा। अगर समझा नहीं, कहा सुनो, नबी को बेइज्जत करने वाला इंट्रीगेशन की जरूरत होती है क्या? नबी को बेइज्जत करने वाला या मुनाफिक की औलाद या ज़िना वाला होता है। अब समझ में आया, डेनमार्क के न्यूज़पेपर में नबी करीम का कानून बनाने वाला आज ज़िना वाले से कम नहीं था। सवाल है नबी का एहतराम हलाली की पहचान है, अलामत है। नबी का एहतराम वो करता है कि जो हलाली होता है। जी आगे बढ़े तो कहा साहब ये तो काम रहा है, काबे का दीवार भाग जाए, फिर आज शायद दीवार मुनक़तिम हो, नीचे से सलाम आ जाए। फातिमा बिन्त असद नहीं भागी, फातिमा बिन्त असद नहीं भागी, साथ आ गए। तो हमने सोचा भाई ये ज़लज़ला वाइब्रेशन क्यों आता है? आज 1400 साल के बाद मोबाइल ने समझा दिया कि हर कांपना ज़ईफ़ी की और तर्स व वहशत की अलामत नहीं होती, बल्कि ये बताता है कि आप भी हालत में नहीं हो। बात आ गई तो मेरे मोबाइल से खेलने वाले जवानों से सवाल करूंगा। अगर आपने मुझे एसएमएस किया, आपने मुझे एसएमएस किया और लिखा ABCD, तो क्या मेरे मोबाइल पे MYZ आएगा? इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन, इतनी खुदबावरी कि ये मेरी जबान सही मगर मैसेंजर है, कभी बदल नहीं सकता। या ऐसा भी होता है क्या कि मैंने 4 अक्षर लिखे ABCD, ठीक आ गया हो और ABC आया हो? ऐसा होता है क्या? पर जवानों तुमसे ज्यादा तो ये मुस्लिम बुजुर्ग जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब इनके
बेटा तो मोबाइल रखते हो जेब में या सराहने के जवाब दो। देखो नहीं आगे ऐसा नहीं है। मैसेंजर अगर दयानतदारी करता है उसमें अगर खलल नहीं है, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप कहेंगे जितना भेजेंगे ना एक ज्यादा करेगा ना एक कम करेगा, जितना भेजेंगे इतना ही आएगा। तो मुझे कहने दो, अरे कुछ बिगड़ी हुई सहनियत के मालिकों तुमने क्यों कह दिया मोबाइल पर तो इतना यकीन है जितना भेजूंगा इतना आएगा। हमारा नबी अकरम अल्लाह भेजने वाला मासूम, जिब्रील लाने वाला मासूम, नबी देने वाला मासूम, सिस्टम में कहा भेजने वाले ने कुरान भेजा, तुमने कैसे कह दिया बीच से निकल गया। जब मोबाइल पे इतना भरोसा है जितना भेजूंगा इतना ही जाएगा, ना कम होगा ना मोबाइल खुद से बढ़ाएगा जी, इसमें तो इतना एतबार। मगर वहां कह दिया नबी चूंकि खौफ में थे, डर रहे थे, कुछ कम कर दिया, इन्होंने कुछ बढ़ा दिया। अल्लाह अकबर, अजमत नबी के खिलाफ है। बुजुर्गों अजमत नबी का एक झलक दिखाऊं, थोड़ा मौजू से हटके है वरना फिर मैं अपने मौजू पे आता हूँ। अगर कहो तो अजमत नबी कैसे होनी चाहिए वो सुनाऊं आपको। पीछे से भाई काफी वगैरह कुछ सोच हुई है, सुनाऊं। अच्छा मोहम्मद काबे के दीवार मुनहदिम हुए, मशवरा दिया अबू तालिब ने। मैं यहाँ अबू तालिब के ऊपर मजलिस नहीं पढ़ने आया हूँ, इसलिए कुछ नहीं कह पाता हूँ, ठीक है। कभी फिर बुलाइएगा जिंदगी में ज़रूराबदीन को, तो अबू तालिब के ऊपर मजलिस से सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। देखिए अबू तालिब बड़े थे ना पैगंबर अकरम से उम्र में जी, किस तरीके से एहतराम सीखा गए। ये कह दूं कि अबू तालिब की तरह अगर एहतराम करना सीख जाते, आज किसी दुनिया वालों में हिम्मत न होती कि नबी का कार्टून न्यूज़पेपर में निकालते। सुनिए एहतराम किस तरीके से किया। अबू तालिब ने अपने बच्चों को बिठा कर सिखाया, मेरे लालो याद रखना ये तुम्हारा भाई जरूर है मगर वक्त का आदी है, रहबर है। चाहिए हमारी तारीख नहीं, इंटरनेशनल तारीख उठाकर देख लीजिए, सीराए हलावी से लेकर तारीख याकूबी तक, अबुल फिदा तक, हर तारीख में मौसूअतुन नबी में ये लिखा है दसियों हवाले के साथ। क्या अबू तालिब ने समझाया था, कहा था, ताकीद की थी कि जब तक मेरा भतीजा अब्दुल्ला का यदि बेटा दस्तरखान पर पहल न करे, तीन बेटों में इजाजत नहीं है कि तुम खाने को उठा भी लो। क्यों? कि क्या तुम नहीं जानते हो कि जब वो पहल करता है इस खाने में इतनी बरकत होती है, जब तक खाते हो नबी के बरकत से खाना रद्द नहीं होगा।
25 साल तक। कितने साल? मैं तारीफ पढ़ रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ तारीफ से। अगर बात गलत हो मेरी इस्लाह कीजिएगा या मुझे चैलेंज कीजिएगा। 25 साल तक 3-3 जगह रिकॉर्ड होता है, मोबाइल पे भी नीचे होता है, ताकि कोई लेकर तो आईफोन है मैं इस्लाह हो जाऊं। 25 साल तक अबू तालिब के घर में पले नबी रहे, नबी अबू तालिब के आगोश में रहे नबी, फातिमा बिन्ते असद के आंचल के नीचे सोए नबी। तो मैं ये मौजूद कभी है ये बताऊंगा अबू तालिब नबी के लगते क्या है। तुम समझते हो चचा है मैं बाप कहता हूँ, तुम समझते हो चची है मैं माँ कहता हूँ। कुरान से दलील भी दूंगा लेकिन आज नहीं, फिर कभी तो अबू तालिब पे पढ़ूंगा। 25 साल तक यहाँ बीच में रोकते हुए मेरे मुसलमान भाइयों से खिताब करूं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन के घर में कितने साल रहने की मोहलत मिली है? किसी के ध्यान में मूसा कितने साल तक रहे? नबी फिरौन के घर में कितने दिन तक रहे? फिरौन की सौजा ने, अहलिया ने, आसिया ने कितने दिन तक मूसा को पाला? कुछ पता है? भाई कुरान में लिखा है, कुरान की तफसीर में है, जाइए पढ़िए। मूसा को 7 years, only 7 साल। कितने? 7 साल। ये इख्तिलाफ रिवायत ये आगे बढ़ गया हो तो 17 साल, 7 से 17 साल। जुगाड़ में ऐसा होता था, वो जो हर लिखते थे, मक्खियां उसके ऊपर बैठ गई, नुक्ता बढ़ गया जी, या उसमें जो है वो रुमाल रखे गए या किसी तरीके से मिट गए, तो अब ये इख्तिलाफ होता था। आज के टाइम के जमाने में नहीं होता, ठीक है। तो ये समझाने के बाद किसी ने 7 किसी ने 17 तक लिखा है, तो मैं 17 ही मान के चलता हूँ। 17 साल तक फिरौन के घर में रहा मूसा। आसिया ने मूसा की परवरिश की, तो आसिया दुनिया के सबसे बुलंद 10 बीवियों में उनका नाम आ गया। इतना ऐसा तो मत सुनो जो मैं घबरा रहा हूं भाई, इतना मत सुनो जो मैं घबरा जाऊं। अगर किसी ने 7 या ज्यादा 17 साल तक एक नबी को पाल लिया और उस नबी का सरदार ताजदार नबूवत को अगर किसी ने 25 साल तक पाला हो, आसिया को दुनिया के 10 मुअज़्ज़िज़ खातून में शुमार और अबू तालिब का कहीं नाम भी नहीं। ये कोई बात नहीं है, आपका भी बात नहीं होगा अगर आप बैठे रहेंगे। मेरे मजमे में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये समझता हो कि जरूर दिन को रात दे दूंगा। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि मजमा बहुत समझदार है, ये दूसरे के लिए अपने आप को कत्ल नहीं करता। क्या मतलब? छोटा सा वाकया मुझे याद दिलाइए, कहाँ था मैं? छोटा सा वाकया है, अरब में 2 भाई थे, लड़ाकू भाई, हसब चलन करने वाले। जब बड़ा भाई के यहाँ जी अलाउद्दीन की तरफ सोने आने लगे, चांदियां आने लगी, पैसा आने लगा, बोला छोटे भाई को बहुत हसद हुआ। जिस भाई को भी पलट दिया, मुझे नहीं माना छोटा भाई बोला था मेरा, किसी को मौका ऐसा भी नहीं है, मेरे मजमे में कोई ऐसा है भी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। तो छोटे भाई ने हुराम से कहा चल रात की तारीकी में कोठे पे चलते हैं। कहा चलो सर। ऊपर पहुंचे कोठे में, कहा कि देख ये बाउंड्री है, ये मुंडेर है, ये उसका घर, ये मेरा घर, तू मुझे उसके घर के छत पे कब्जा कर देना, पुलिस आएगी उसी को पकड़ के ले जाएगी। इत्तेफाक से बुलाता मजबूर था, आका का हुक्म मानना था, सैलरी नहीं मिलेगी। जब के ऊपर आप सच बताऊंगा, ताकि मारना सच। उसने तलवार निकाली, उसके छत पर गड़बड़ उड़ा दी। पुलिस आई, क्या देखा? भाई को बिजनेस में गया हुआ तो था ही नहीं। तो हालत में अपनी जान गई नहीं गई।
بھی ہے الحمدللہ سارا مجمع دل ہے, سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, حسین کا ذکر ہو رہا ہے, حسن کا ذکر ہو رہا ہے, تو میں عرض یہ کر رہا تھا, چلے ابو طالب نے سمجھایا, دیکھو میرے بچوں, جب میرا بھتیجا, نام بار بار اس لیے نہیں لو, یہ احترام ہے نبی کا, میرا بھتیجا جب تک آغاز نہ کرے دسترخوان پر, میرے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کھانا شروع کرے. حسب دستور کے خلاف ایک دن بڑا بیٹا طالب دور دراز سے سفر کر کے تھکا ہارا عرب کی گرمی تشنگی میں آیا, ابو طالب کے دسترخوان سے دودھ کا پیالہ لیا, لبوں سے لگانا چاہا, ابو طالب کا پورا ہاتھ پیالے اور لب کے درمیان میں حائل ہوا. میرے لال کیا سکھایا ہوا, درد بھونگے تاکہ بابا پیاس کی شدت تھی, آدھے کو جان بھی چلی جائے مگر محمد سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا. کیا بابا بات کیا ہے, آدھے کو جب بھی محمد کھانا شروع کرتا ہے اس کھانے میں برکت آتی ہے. ابو طالب نے اس زمانے میں برکت کا لفظ سکھایا, جب مکہ برکت تو نہیں جانتا تھا. جوانوں, اگر کوئی پڑھ لکھ کر ڈگری لے کر آتا ہے, انسپیکٹر بن کر آتا ہے, اس کو سلوٹ کرنا ایزی ہے, وہ یونیفارم میں ہے. لیکن اگر وہ بچپن سے ہی کوئی پہچان جائے کہ یہ بڑا ہو کر انسپیکٹر بنے گا تو کمال ہے. بے شک بے شک جی, نبوت کے آنے کے بعد احترام کیا تو کون سا کمال کیا. نبوت کو بچپنے میں اگر کوئی پہچان لے, سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سے لفظوں کی ساتھی میں کیا کرتا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ جی تو کمال ہے. اب جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, سنیں. فرعون کی زوجہ نے, آسیہ نے 7 سال پالا یا 17 سال تمہارے بقول. قرآن میں آسیہ کی دعا پڑھ لیجئے گا, آسیہ نے قرآن میں لکھا ہے دعا یہ کی, پاک پروردگار میں نے تیرے نبی کو پرورش کیا, اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں گھر دے دے. اگر 7 سال کی پرورش کے بعد وہ دعویٰ کرتی ہے حقدار ہے جنت الفردوس میں گھر کا, تمہارے ابو طالب نے عزت کیا, 25 سال کے بعد خدا سے کچھ نہ مانگا, اپنی اولاد دے دی. سلام بھیجیے پر محمد. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ہے دنیا کے 10 بیویوں میں 10 خاتون میں سب سے افضل خاتون کہ جو 7 سال کی محنت کے بدلے میں جنت الفردوس میں گھر مانگے. اور یہ کیسی شخصیت ہوگی 25 سال کی خدمت کے بعد, 25 سال کی خدمت کے بعد خدا سے مانگا تو کیا مانگا, اے میرے معبود, نبی کے بستر پر علی کو اس لیے سنا رہا ہوں تیرے نبی کی جان بچ جائے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے نبی کی جان بچ جائے, یا تم لوگ بدل دوں نہیں سمجھے تو, یعنی تیرے مشن کی
नबी की इब्तिदाई जिंदगी में नहीं, नबी की मिशन के इंतहा तक, नबी के मिशन के इंतहा तक अबू तालिब की कुर्बानी रहेगी। जहां जहां नबी का मिशन रहेगा अबू तालिब का ये अमल भी दोहराया जाएगा। सुने, एक हिंदू भाई ने, एक हिंदू शायर ने इस अंदाज से कहा, तो चलाया शायर ने, हिंदू भाई ने इस अंदाज से कहा, कुछ पहचाना तो बोला कि कुछ तो अल्लाह ने समझा है ये रुतबा मेरा। मेरे से मतलब इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन की ममदूह की ज़बानी बोल रहा है। माथुर लखनवी कहता है कि कुछ तो अल्लाह ने समझा है ये रुतबा मेरा, इसलिए उसका पैगंबर बना नाचा मेरा। अबू तालिब ने एहतराम किया, नबी ने जवाब दी। कुछ तो अल्लाह ने समझा है ये रुतबा मेरा, इसलिए उसका पैगंबर बना नाचा मेरा। और अपने अब्बास को लड़ने की इजाजत क्यों दूं, इतने लश्कर के लिए काफी है बच्चा मेरा। शहादत पे कुर्बानी ज़बीहा मेरा। समझ रहे? ये एक जुमला कह दूं, हिंदुस्तान के आयतुल्लाह ग्रेड के आलिम दीन ने, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद के साथ जिंदगी गुजारी, उस आलिम दीन ने ये जुमला लिखा है अपनी किताब शहीद इंसानियत में। शायद जमाने ने कदर न किया मगर अब समझ रहा है। क्या जुमला था मालूम है? कहा कि शहादते अली असगर हुसैन की मजलूमियत की सबसे बड़ी दलील है। अली अकबर आपकी शहादत अपनी जगह, अब्बास आपकी शहादत अपनी जगह, और मोहम्मद आपकी कुर्बानी अपनी जगह। मगर दुनिया के हर धर्म का आदमी, हर अक्लमंद आदमी ये कहेगा 6
आवाजों पर कुर्बान हो जाऊं। आपकी आवाज को सलामत रखे खुदा। मौला कर वो बना में तो चली रबाब के कानों तक आपकी आवाज पहुंचा दे, जिसके साथ रोने वाला कोई न था। रोके भी थी तो कोड़े लगते थे, कोड़े बसते थे सुने। जब मुख्तार के दरबार में हुरमुला को कैद करके लाया गया और हुरमुला से कहा मुख्तार ने, अरे ओ हुरमुला, तूने अली असगर के तीर कैसे चलाया? अल्लाह अकबर। जो अली असगर की मां करबला के वाक़या को हुए 2 साल गुजर गए थे, फिर भी रोती रही। हुरमुला ने सवाल कर लिया, अरे मुख्तार, क्या करबला का वाक़या देखने के बाद अली असगर की मां जिंदा रही? खुद जालिम भी जानता है मैंने कैसा तीर चलाया था। नन्हे से गले पर हाकिम से पूछा, मुख्तार, क्या उसको देखने के बाद अली असगर की मां जिंदा रही? अल्लाहु अकबर। अली असगर कौन? अली असगर मैंने समझाया आपको, कुर्बानी में सबसे आगे अली असगर मेरा, किसी से कम नहीं। रजब की 10 तारीख को पैदा हुए, 28 रजब 18 दिन का अली असगर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 18 दिन का ये नन्हा सा बच्चा मां के आगोश में इतना लंबा सफर कर रहा है। अभी ऐसी फिदाकारी आराम का वक्त है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, मगर हमारी पर सवार होती है, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। कौन आप जानते हैं? आप अली असगर के नाना का नाम है हिजाम। हिजाम वो शख्स है कि जो अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज। बैकग्राउंड सुन लीजिए, तीर खता न होने वाला मौलाना मोहम्मद अब्बास उम्मी 2010 में दुबई में मस्जिद पढ़ते हैं, वो सुन लीजिए। नहीं चाह रहा था मौत करना, मगर कुछ देखता जाऊं आगे। जब शादी करके इस घर में आई तो एक चीज लेकर आई जिसको हमेशा अपने पास रखती थी लबास। नई चीज नहीं है, मैं सुनकर आलिम से बता रहा हूं, मुझे तस्दीक कराकर नाम मत दीजिएगा। नाम भी बताया मैंने, जिंदा है अभी लाहौर में। क्या एक संदूक, तारीख क्या है समझते हैं आप? इस तरीके से है कि जब भी हिजाम तीर चलाते थे, निशाना लेते थे, खता नहीं। ये बेटी बहादुर बाप की पीछे से चुप चुप कर देखती थी, किसी को इजाजत नहीं तीनों कमान पे हाथ लगाए। मगर ये बच्ची जब जवानी के दहलीज पे कदम रखने लगी, बाप के जाने के बाद तीर और कमान से खेलते खेलते निशान लगा देती। तीरंदाजी में इतना माहिर हो गई रहा। एक दिन कमान में तीर जोड़ा, निशाना लिया, निशाना लगा, पीछे से बाप ने निशाने पर हाथ रखा। मेरे लाल, तूने साबित कर दिया तू मेरी बेटी है, काश तू बेटा होगा। क्या मुझे इजाजत दी? मेरे तीर और कमान की सफाई की जिम्मेदारी मेरे हवाले। अब आप तीरों कमान की सफाई करती थी जी। इस तीरों कमान से मोहब्बत है रबाब को, रबाब जानती है। जब शादी होकर जाने लगी तो जहेज में बाप ने चहीती बेटी को ये तीर और कमान के संदूक को दे दिया। मेरे लाल, आज से मैं तीर और कमान पे हाथ नहीं लगाऊंगा। ये तुझे
रमजान से तीनों के मुसल्ले पर उसको कुर्बान कर दे, और हुनर वो हो उसके अंदर कि वो मिनटों में चाहे असलहे का इस्तेमाल कर ले, असलहा हाथ में, और बच्चा कुर्बान हो जाए, और उसी असलहे से जिसका वो मालिक हो। जब मदीने से गई, एक सानों पर संदूक था, एक सानों पर अली असगर। जहां भी उतरी बीबी संदूक रखती थी, उसके ऊपर अली असगर को। करबला में पहुंची, मैं नहीं कहता, नाम लेके कहता हूं, मौलाना मोहम्मद अब्बास उम्मी फरमाते हैं, जब करबला में पहुंची, अल्लाह अकबर, सुनाओ, 3 दिन से माँ का दूध खुश्क हो गया। जैसा गैरतमंद इंसान न पैदा बनावे, जिसका नाना सबसे बड़ा गैरतमंद, जिसकी माँ के सर से अगर बिता हट जाए, सूरज भी अपने आप को बादल में छुपा दे, जिसकी बहन अगर माँ की जियारत को निकले तो 18 भाइयों का हिसाब और माँ की तारीखी का पर्दा, तो हुसैन करबला में क्या कह रहा था, एक ओदेश किया, इसके माँ का दूध खुश्क हो गया। अल्लाह ने मजबूरी मजलूमियत जवानों को समझ रहे हो, इतना मजबूर था मेरा हुसैन, कितना बेकस था। माँ ने, सुनाऊंगा आपको, माँ ने रात को शम्मा खैमे के बीच में संदूक के ऊपर अली असगर को रखा, एक पोटला पुराने जमाने का वो खोला, खोलने के बाद एक लिबास को चाक किया, छोटा सा लिबास बनाया, अली असगर को पहनाया, फिर उससे एक पटका निकाला। मेरे दोस्तों, अरब का दस्तूर था, टीपू सुल्तान सीरिया में देखोगे समझ जाओगे, हर सिपाही के कमर में पटका होता था ताकि चलने में उसको हिम्मत हो। अली असगर के माँ ने इस शख्स पटके को अली असगर के कमर में बांधा। मेरे लाल, याद रखना, यह अबू तालिब का शख्स पटका है जिसको ईमान ला करते थे। मेरे लाल, याद रखना, अबू तालिब की इज्जत का सवाल है, नाना अली की गैरत का सवाल है। मेरे लाल, 3 वसीयत याद रख, 3 वसीयत याद रख, लेके आती वसीयत, दिल है, जिगर है, सुनाओ, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, आंखों की दुनिया है, तसादुफ की दुनिया है, मैं रहूं ना रहूं, आओ ना आओ, सुन लीजिए, हो जाए तो इसके मसाइल पर पढ़ावे हैं, आपकी मोहब्बत के जोश को देखते हुए 46 से ज्यादा मेरे की दिन, और क्या होगा कि इसका मसाइल पढ़ूं, और सारे हवाले से पढ़ूंगा, जिसको जो नहीं काम लगे बात में आके पूछ लेना, हवाला देता रहूंगा, लिहाजा हवाला देने से मेरे पास टाइम नहीं है। कहा कि मेरे नाम 3 वसीयत याद रखना, 3 माँ की नसीहत। अली असगर बच्चा जरूर था, मगर हुसैन का दाखिला था, बोलते कुरान का पारा था, बेसवाल जरूर था, मगर आदिल, हिकमत, फहम का किरदार का मालिक था। मैंने कहा, सुन बेटा, पहली वसीयत, मैं पराए घर से ब्याह कर आई हूं, मैंने फातिमा का दूध नहीं पिया, मैं फातिमा की बेटी नहीं हूं, अली का खून मेरे रगों में नहीं है, मेरे नाम तू सबसे छोटा सिपाही है, अगर तू घबरा गया तो ये माफी जिंदगी भर मुंह न दिखा पाएगी। मेरे लाल, कुछ भी हो जाए, मुकाबला करना, पैदाकारी में किसी खातून को
मैदान में जाता है ना, अपना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सिपाही सिपाही होता है, उसका एक ही बस हदफ होता है, एक ही मकसद होता है और कुछ नहीं। वो क्या मकसद है? चाहे मेरी जिंदगी चली जाए, मेरा सरकार बच जाए, मेरे लाल कारवाने हुसैनी